नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटियों। माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Today our session is advantage of hierarchy system. Students, advantages of hierarchy systems is many points have. Let's see. First is organization unity. In the hierarchical system, the chief executive office bearers and employees are connected like in a chain. According to Dr. M.P. Sharma, it is a thread thought which different parts are stick together. Highlights the organizational unity of the philanthropic system. Monet writes the biggest advantage of the theory of sequential process is that it is a device connecting different departments. It is necessary for the organization in the same way as the cement for the structure of a building. Conveniences. Second, convenience of gaining experience by employees. Padsopan system is based on the division of rights and duties. In this, officers and employees at very level get the opportunity to use their rights and powers so that they gain expertise and experience in their work. Third is unity of commands. In the Padsopan system, the principle of unity of order is adopted. The transmission of the order is from top to bottom in order. Each person obeys the orders of the same officer and is responsible for the same. This makes the organization work smoothly. Fourth is work through proper channel. In the Padsopan system, very functionally works under the supervision of the immediate higher official and is responsible for the same. Every action has to pass through all levels. This principle or process has been called by the proper path. Fifth is conveyances for executive officer. In the post hierarchical system, the supreme office has adequate facility in the operation. He gives work orders and instructions to his subordinate officers so that his own work load becomes very light. This saves valuable time of the office and the work is done efficiently. Next is point convenient correspondence. In the hierarchy system, correspondence or message sending is sent from high to low or low to high level by proper route. Each officer knows that with whom he should communicate. And next is coordination.
In this method, all the actions of the organization are carried out under certain rules. In addition, there is a clear division of work, resulting in coordination between different units of the organization. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any query, please comment box. I will sort out. Students, अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। देखिए, आज का जो सेशन है वो पद सोपान प्रणाली के लाभ क्या है उसकी बात करेंगे। एडवांटेज ऑफ हायरार्की सिस्टम। बहुत से लाभ हैं, जिसमें सबसे पहले है संगठनात्मक एकता, ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी। पद सोपान प्रणाली की संगठनात्मक एकता पर प्रकाश डालते हुए मुने लिखते हैं, कर्मिक प्रक्रिया के सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह विभिन्न विभागों को जोड़ने वाला एक यंत्र है। वह संगठन के लिए उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार किसी भवन के ढांचे के लिए सीमेंट। बहुत बार कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने ये शब्द कहे हैं, तो ये मुने ने कहे हैं। पद सोपानीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और कर्मचारी परस्पर एक जंजीर की तरह, कड़ी की तरह जुड़े रहते हैं। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार यह एक धागा है जिसके द्वारा विभिन्न हिस्से एक साथ सिले हुए हैं। ये भी कई बार बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, सिविल सर्विस में। इसके बाद दूसरा लाभ है कर्मचारियों को अनुभव प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। पद सोपान प्रणाली अधिकार तथा कर्तव्यों के विभाजन पर आधारित है। इसमें प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अधिकारों व शक्तियों के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि वे अपने कार्य में दक्षता और अनुभव प्राप्त करते जाते हैं। तीसरा लाभ है आदेश की एकता बनी रहती है, यूनिटी ऑफ कमांड्स। पद सोपान प्रणाली में आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। आदेश का संचरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। इससे संगठन का कार्य अच्छे से चलता रहता है। चौथा है उचित मार्ग द्वारा कार्य, वर्क थ्रो प्रॉपर चैनल। पद सोपान प्रणाली में प्रत्येक पदाधिकारी अपने से तत्कालीन उच्च पदाधिकारी की देखरेख में काम करता है और उसी के प्रति उत्तरदायी रहता है। प्रत्येक क्रिया को सभी स्तरों से गुजरना होता है। इस सिद्धांत या प्रक्रिया को उचित माध्यम द्वारा कहा जाता है। ये भी कई बार बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आता रहता है, तो इसको देखना चाहिए। अगला लाभ है सर्वोच्च अधिकारी की सुविधा, कन्वेंस फॉर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पद सोपानी व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी को कार्य संचालन में पर्याप्त सुविधा मिलती रहती है। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य संबंधी आदेश व निर्देश देता है, जिससे कि उसका स्वयं का कार्यभार हल्का हो जाता है। इससे अधिकारी के समय की बचत होती है और कार्य दक्षतापूर्ण संपन्न होता रहता है। इसके बाद में अगला लाभ है पत्र व्यवहार की सुविधा, कन्वेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। पद सोपान प्रणाली में पत्र व्यवहार अथवा संदेश प्रेषण उच्च से निम्न और निम्न से उच्च स्तरों तक उचित मार्ग द्वारा होता है। प्रत्येक अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि उसे पत्र व्यवहार किस अधिकारी से करना है, तो ये भी आपके एक लाभ है। इसके बाद में अगला है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इस पद्धति में संगठन की सभी कार्यवाहियाँ निश्चित नियमों के अंतर्गत होती हैं। इसके अतिरिक्त स्पष्ट कार्य विभाजन होता है, जिससे संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य समन्वय बना रहता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की जो बात है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।